بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے نو منتخب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے حلف لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ حلف مکمل ہونے تک پہلو میں کھڑی رہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں حلف لیا۔ فرائض اور کار ہائے منصبی دیانتداری اور وفاداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سر انجام دوں گا۔ ملک میں عدل و انصاف کے نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچی حمایت اور وفاداری نبھاؤں گا۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ صدر مملکت عارف الوی نے نئے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ حلف لیتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ ساتھ موجود تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان I will discharge my duties. نئے چیف جسٹس نے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں حلف لیا۔ تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، کابینہ ارکان، ججز اور وکلاء سمیت دیگر حکام شریک ہوئے۔ رواں برس 21 جون کو صدر عارف الوی نے آئین کے آرٹیکل 175(a)(3) کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس پاکستان تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 تک عہدے پر فائز رہیں گے۔ 26 اکتوبر 1959 میں جنم لینے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیشہ ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی پر زور دیا۔ اپنے فیصلوں میں آئین و قانون کی حکمرانی کو اولویت دی۔ بہت سے اہم فیصلے دیے۔ عدلیہ سمیت کسی بھی ادارے کے لیے محترم کا لفظ استعمال نہ کرنے کی آبزرویشن دینا شامل ہے۔ کام سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جج آئین اور قانون دائرے کے تحت چلتا ہے۔ قانون بنائے گئے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنما قاضی محمد عیسیٰ کے بیٹے اور پاکستان بننے سے پہلے قلات کے وزیر اعظم قاضی جلال الدین کے پوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے تمام PCO جج فارغ ہوئے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ براہ راست 5 اگست 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 5 ستمبر 2014 کو سپریم کورٹ میں بطور جج عہدے کا حلف اٹھایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلوں کے اندر ہمیشہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی پر زور دیا۔ بطور جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت سے اہم فیصلے دیے، جن میں عدلیہ سمیت کسی بھی ادارے کے لیے محترم کا لفظ استعمال نہ کرنے کی آبزرویشن دینا بھی شامل ہے۔ اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پبلک پارکوں کے استعمال، ماحولیات، خواتین کے وراثتی حقوق، فیض آباد دھرنا کیس اور 21ویں آئینی ترمیم میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو بھی غیر آئینی قرار دیا۔ عدالتی کریئر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے حکم ناموں میں سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل، چیف جسٹس کے اختیارات اور مقدمات مقرر کرنے کے طریقہ کار کے خلاف بھی لکھا۔ PTI کی حکومت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے صدارتی ریفرنس بھی دائر کیا گیا، جسے نظر ثانی میں اکثریت کی بنیاد پر قلعدم کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہلے جج ہیں جو جڑاوالا سانحے کے بعد وہاں کے مکینوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کے پاس گئے۔ چرچز کوئی اگر حملہ کرے اس پہ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ جہاد کا حملہ والا، یہ سب سے زیادہ فرض کس پہ ہے؟ مسلمانوں پہ، کہ آپ کی مدد کریں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے PDM دور حکومت میں قومی اسمبلی میں ہونے والی آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریب میں بھی شرکت کی۔
बैठे हुए हैं, हो सकता है ये कहें या हो सकता है आप कल कहें, आप को बुलाए भी फिर भी हमारे खिलाफ आपने फैसला किया, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मुकदमात को मुकर्रर करने 184(3) के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बनाना, ज़ेरे इल्तिबा मुकदमात के बैकलॉग को कम करना और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया के वक़ार को बहाल करना नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नई रिवायत डाल दी। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान स्टेज पर अहलिया सरीना ईसा को खड़ा करके हलफ लिया। सोशल मीडिया सारिफीन ने चीफ जस्टिस के इक़दाम को रिवायत शिकनी करार देते हुए सरीना ईसा की पुरवकार और बारोब शख्सियत की भी खूब तारीफ की। बुरे वक्त में मेरे साथ थी, मेरे अच्छे वक्त पर हक उसी का है। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नया ट्रेंड सेट कर दिया। अपनी अहलिया सरीना ईसा को साथ खड़ा करके ओहदे का हल्फ उठाया। काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने अपने शौहर के साथ उनके खिलाफ दायर रेफरेंस का सामना किया, अदालत में पेशियां भुगती और डट कर अपने मौक़िफ़ का दिफा किया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब के स्टेज पर अहलिया को खड़ा करके रिवायत शिकन काजी फाइज ईसा ने नई रिवायत डाल दी। सोशल मीडिया सारिफीन ने चीफ जस्टिस के इक़दाम को खूब सराहा। किसी सारिफ ने चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया की स्टेज पर मौजूदगी को खूबसूरत मंजर करार दिया तो किसी ने इसे नए दौर का आगाज कहा। एक सारिफ ने कहा सरीना ईसा का स्टेज पर मौजूद होना तारीख का शॉर्ट एंड स्वीट इंतकाम था। एक सारिफ ने चीफ जस्टिस की तारीफ करते हुए लिखा कि आज पैगाम गया, खवातीन हमारी बराबर की साथी हैं और उनकी हैसियत तस्लीम करने की जरूरत है। एक सारिफ ने चीफ जस्टिस की कामयाबी का क्रेडिट उनकी अहलिया के मरहूने मिन्नत करार दिया। उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ की जस्टिस फाइज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा अवाम अदल इंसाफ की फरहमी के मुंतजिर है। मरियम नवाज ने कहा उम्मीद है आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है आजाद खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हमेशा अदल इंसाफ पर कायम होती है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पैगाम में कहा कानून की हुक्मरानी के लिए मुकन्नना अदलिया और एग्जीक्यूटिव का मिलकर काम करना जरूरी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए बड़े चैलेंज क्या होंगे? कानूनी माहिरीन का कहना है 90 दिन में इलेक्शन कराना बड़ा चैलेंज होगा। जजेस के दरमियान तकसीम पर काबू पाना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस भी बड़ा चैलेंज होगा। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के बैकलॉग को कम करना और सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करना होगा। साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और तमाम जजेस को इकट्ठा करके उनको साथ लेकर चलना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक तो वो चैलेंज है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, और तीसरा इलेक्शंस को 90 दिन के अंदर कराना। मुनकसिम अदालत को इकट्ठा करें और इलेक्शंस को जो है इनकाद शफाफ करवाएं अपनी आईनी मुद्दत के अंदर रहते हुए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो उनके लिए है वो है इलेक्शन 90 डेज में कराना। सबसे बड़ा जो उनका मसला होगा वो यही होगा कि ये रूल्स को किस तरह और कितनी देर में अमेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस के दरमियान तकसीम का तासुर है उसको सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो खलीज पुर करना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि उनके साथ बाकी जजेस के रवैये से शुरू हुई थी जब उनके खिलाफ रेफरेंस थी। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो डिवीजन इन द सुप्रीम कोर्ट है कि जो एक परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो हैं वो डिवाइड हैं। वो सुप्रीम कोर्ट जिसके ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट नहीं हुए उनको उन्होंने वापस अपनी जो एक्चुअल जो उनकी पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट की कि जिसके ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट हो उस पे लेके आना। तो जजेस के दरमियान तकसीम थी, उसको पे काबू पाना काजी साहब का एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी को बहाल करना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो यूनिटी वो लानी होगी। 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, उसके ऊपर फौरन फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत कल सुबह 9 बजे होगी। नई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम की जानिब से जारी की गई कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच समाअत करेगा।
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھاتے ہی پہلی سماعت کے لیے فل کورٹ بنا دیا۔ عدالت کی کل کی کارروائی براہ راست نشر ہونے کا امکان بھی ہے۔ پی ٹی وی کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے پی ٹی وی کے وفد نے سپریم کورٹ کا دورہ بھی کیا۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع جاری کیا تھا۔ گزشتہ کئی ماہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ موقف اختیار کر رکھا تھا جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں کرتی وہ کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خصوصی عدالتوں کے قیام سے متعلق کیس کے بینچ سے الگ ہوتے وقت بھی اس بات کا اظہار کیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کی تبدیلی کے بعد سپریم کورٹ کے انتظامی امور میں تبدیلیاں، جزیرہ اسلم کو سپریم کورٹ کی رجسٹرار تعینات کر دیا گیا۔ وہ عدالت عظمیٰ کی پہلی خاتون رجسٹرار ہوں گی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد کو چیف جسٹس کا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا، جبکہ عبدالصادق کو سٹاف افسر برائے چیف جسٹس لگا دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبران کی بھی تشکیل نو ہو گئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن بن گئے۔ جسٹس سردار طارق پہلے ہی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں۔ جسٹس منیب اختر ججوں کے تقرر کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا حصہ بن گئے۔ ایک ریٹائرڈ جج، وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ بھی ججز تقرری کمیشن کا حصہ ہوتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ شیخ رشید کے وکیل سردار عبدالرزاق نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ بتایا شیخ رشید کو راولپنڈی کی نجی سوسائٹی میں ان کے گھر سے سول کپڑوں میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا۔ شیخ رشید کے خلاف پنجاب میں کوئی مقدمہ نہیں۔ 10 مئی کو اسلام آباد میں ریلی نکالنے پر تھانہ کوسار میں مقدمہ درج ہوا تھا، جس میں شیخ رشید بھی نامزد تھے۔ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ شاکر اور ایک اسٹاف ممبر کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ معلوم نہیں گرفتار کر کے کہاں لے جایا گیا ہے۔ شیخ رشید تک رسائی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو لاہور ماسٹر پلان میں بے ضابطگی کیس میں رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور کی مقامی عدالت نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی محکمہ اینٹی کرپشن کی استدعا مسترد کر دی، مقدمے سے ڈسچارج کر کے رہائی کا حکم دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ریحان الحسن نے تحریری فیصلے میں کہا ٹرائل کورٹ کو اختیار ہے ڈسچارج کے باوجود ملزم کو ٹرائل کے لیے طلب کرے۔ بظاہر ملزم کو اس مبینہ جرم میں چارج کرنے کے لیے مواد موجود نہیں، ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو فوری رہا کر دیا جائے۔ پرویز الہی کو راولپنڈی میں دہشت گردی کیس میں ملوث ہونے پر دوبارہ گرفتار کر کے اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ پرویز الہی کے وکیل رانا انتظار کہتے ہیں عدالت سے رہائی ملنے کے باوجود پولیس نے گرفتاری ڈال دی۔ پرویز الہی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتھارٹیز نے آج ان کو لاہور ماسٹر پلان کی بے ضابطگیوں کے بارے میں کہ انہوں نے کچھ گاؤں ہے جو کوٹلی رائے ابوبکر قصور کا اس کو ماسٹر پلان میں شامل کیا ہے اپنی زمینوں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے، اس میں پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اینٹی کرپشن 10-11 FIRs ان پر کر چکی ہے۔ ہم نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو ہے پرسنل وینڈیٹا ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جس طرح باقی کیسز میں ہوئی ہے، تو یہ جو اینٹی کرپشن اتھارٹیز نے یہ غلط مقدمہ بنایا اور بدنیتی شامل ہے اور اس میں انہوں نے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی اس معاملے میں اور بطور وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کا ہم نے وہ آرڈر بھی پیش کیا جس میں جو ہے یہ جو ماسٹر پلان تھا اس کو جسٹس شاہد کریم نے سسپینڈ کر دیا ہوا ہے آلریڈی، اور اس کے علاوہ آلریڈی ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ ود ان 10 days آپ نے ان کو کسی بھی اور کیس میں جو ہے وہ گرفتار نہیں کرنا۔ ان تمام دلائل سے ہم نے کیے، اس سے عدالت نے اتفاق کیا اور اس کے بعد عدالت نے ان کو اس کیس سے ڈسچارج کر دیا۔ ڈسچارجی کرنے کے بعد جو راولپنڈی پولیس ہے وہ نے دہشت گردی کے ایک اور مقدمے میں اڈیالہ جیل سے لے کر آئی تھی، وہ واپس ادھر ہی لے کر چلے گئے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ انوار الحق کاکڑ 18 سے 23 ستمبر تک نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے مباحثے میں شرکت کریں گے۔ 22 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بھی خطاب کریں گے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ انوار الحق کاکڑ کی سائیڈ لائنز پر چین، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت دیگر اہم ممالک کے سربراہان سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔
भारत 8वीं बार एशियन चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त। श्रीलंकन टीम सिर्फ 50 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने हदफ 7वें ओवर में पूरा कर लिया। कोलंबो में मोहम्मद सिराज श्रीलंकन बैटर्स पर कहर बनकर टूटे। करियर बेस्ट 6 शिकार किए। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर में महंगाई रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। कराची के सस्ते बाजार भी लोगों के लिए कोई रिलीफ न दे सके। सक्खर में भी अशिया खुरनोश गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। नौकरियात पे चली गई। मेरी बच्ची ने सुबह चाय पी के कुरान पाक पढ़ने गई थी। 1-2 किलो आटा दिलवा दो। मुल्क में महंगाई के रोजाना की बुनियाद पर वार। पेट्रोल से लेकर दालें, सब्जियां, गोश्त, सब कुछ आवाम की दस्तरस से बाहर हो गया। कराची के सस्ते बाजारों में भी लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं। आटा 160 रुपए फी किलो, चीनी 170 रुपए किलो, दाल चना और दाल मूंग 280 रुपए किलो मिल रही है। सब्जियां और फल भी महंगे हैं। सक्खर में भी अशिया खुरनोश गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। आटा, दालों और सब्जियों समेत आम अशिया 30 से 40% महंगी हो चुकी हैं। सब कुछ महंगा हो चुका है। सब्जी हो गई, दालें हो गई, हर चीज महंगी है। कोई गरीब बंदा पूर्ते होते ही नहीं है उसके। महंगाई का हाल ये है कि एक वक्त खाते हैं, दूसरे वक्त का खाना नहीं मिलता। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई के जाल में फंसे अवाम की दुहाई। कहते हैं पेट्रोल, गाड़ियों का किराया, खाना पीना सभी महंगा है। समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। काम ठप है और महंगाई पेट भर खाना भी नहीं देती। एक बेवा औरत हूँ मैं, ये स्टॉल लगाती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। समझ लो कि अगर आटा है तो सालन नहीं है, सालन है तो आटा नहीं। इतने परेशान। हर चीज पे दाम तो खुद बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट ही महंगा होगा तो हर चीज पे दाम बढ़ेंगे। सवारी है नहीं, गड्डियां खड़ियां वा रुकियां हुई वा। असी परेशान हाँ। अमला उन्होंने गड्डियां दा वेला वा फारग अपने घर। अच्छे से हासलपुर से किराया भर के आए हैं। वो तकरीबन हम 500 देते थे, अब हमने 850 दिया है। 350 ज्यादा दिया है। हमारे कहने से तो फिर भी हुकूमत पाकिस्तान हमारे से तावन तो नहीं करती। अगर मुनासिब किराया होगा तो हर कोई सफर करेगा, क्योंकि उसमें हमारी भी रोजी है और हमें भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। गोश्त दूध के बात है, वो सब्जी भी नहीं खरीद सकते, इतना महंगाई हो गया है। पॉलिसी बने ताकि गरीबों पर बोझ न आए। टैक्स लेने वाले कोई और होते हैं, भरने वाले कोई और होते हैं। पेट्रोल महंगा कर दिया है, सही उनको एक बहाना चाहिए था। अब चीनी जो है 160, 70, 80 रुपए थी, अब 200, 300 तक पहुँच जाए। गरीब आवाम क्या करे, कहाँ पर जाए, किसको अपनी फरियाद करे। महंगाई का दौर इतना हो गया कि गरीब के तो बिल्कुल रोने का टाइम आ गया। जमात इस्लामी का कल पेशावर गवर्नर हाउस के सामने धरने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर दीर में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा 21 सितंबर को लाहौर, 24 सितंबर को कोयटा और 6 अक्टूबर को कराची गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। महंगाई की असल जिम्मेदार पीडीएम और तब्दीली सरकार हैं। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान अब महंगाई पर खामोश हैं। निगरां हुकूमत भी मुसलसल पेट्रोल महंगा कर रही है। अल्लाह ताला दे दिन क़याम नहीं। 25 करोड़ इंसानों अपनी कुव्वत पहचानो। कराची की शारा फैसल पर जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मंगल को सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद करेंगे, हॉर्न भी बजाएंगे। इस एहतजाज से हुकूमत को बिजली पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा। एक और पेट्रोल बम पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम पर फेंका है। ये पिछले 16 महीने तेरा जमात, ये लुटेरों की जमातें जिन्होंने आवाम का खून चूसा, उसी का तसल्सल निगरां हुकूमत इस वजीर आजम साहब की सूरत में मौजूद है। 19 सितंबर को कराची के लोग सड़कों पे आकर खुद भी खड़े होंगे, अपनी बाइक बंद करेंगे, अपनी गाड़ियां बंद करेंगे और हॉर्न भी बजाएंगे। इन्हें पेट्रोल की कीमत भी कम करनी होगी, इन्हें बिजली के बिल भी कम करने होंगे। 25 करोड़ इंसानों अपनी कुव्वत पहचानो। एफआईए का गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान एफआईए ने बताया, रवां बरस करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ 303 कार्रवाइयां की, 416 मुलजिम गिरफ्तार, 3 अरब 54 करोड़ रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद की। जराये ने बताया, हवाला हुंडी में मुलविस 8 बैंक मैनेजर्स के खिलाफ पर्चे कट गए। मुकदमात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में दर्ज हुए। फैसलाबाद से बैंक मैनेजर जीशान शौकत गिरफ्तार, 12 मुख्तलिफ कंपनियों की स्टैंप बरामद हुई
उधर बलूचिस्तान में स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम्स की कार्रवाई। कपास में ट्रक से 10 करोड़ का सामान बरामद। तर्जुमान कस्टम्स ने बताया जब्त किए गए सामान में कपड़ा, थालियां, टायर्स और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां शामिल हैं। जियारत में गाड़ी से 125 टायर और रखने में ट्रक से 4000 किलो छालिया कब्जे में लिया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि रावलपिंडी में इमारत के तहखाने में छुपाई गई तिजोरियों से मिलने वाले 40 करोड़ रुपए FIA कमर्शियल बैंकिंग सेल ने अपनी तहवील में ले लिए। निजी प्लाजा के मालिक शेख सरोश इफ्तिखार आदिल को इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। FIA जराये ने बताया है कि निजी प्लाजा में खुफिया इतला पर छापा मारा गया था। डिजिटल लॉकर से 40 करोड़ 5 लाख रुपए मिले। रकम सीज करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। बरामद रकम से मुतालिक FBR से भी राब्ता किया गया है। रानीपुर की फातिमा के अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर कत्ल केस में तीसरी बार तफ्तीशी अफसर तब्दील। वालिदैन के इस्तार पर तहकीकात SP CTD को सौंप दी गई। वालिदा का कहना है पुलिस मुलजिमा हिना शाह और मुलजिम पीर फयाज शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। रानीपुर की फातिमा कत्ल केस का तीसरी बार तफ्तीशी अफसर तब्दील। अहले खाना 1 माह से इंसाफ के मुंतज़िर। अदालत की जानिब से अदम इत्मीनान पर तफ्तीशी अफसर बच्चल काजी को हटाकर केस DSP सफीउल्लाह के हवाले किया गया। फातिमा के वालिदैन ने इस तब्दीली पर एतराज उठाया। सखर अब्दुल हमीद खोसो ने फातिमा के अहले खाना से मुलाकात की। अहले खाना ने DSP सफीउल्लाह पर एतराज किया, जिसके बाद तहकीकात SP CTD के हवाले कर दी गई। पुलिस कोशिश करे थी घड़ी शयून हर लिहाज सा जेको तरीक़ेकार है उनके सां फॉलो कयूं था ऐं इंशाल्लाह जेके अक्यूज़्ड आहिनि जेके बदजी आहिनि उन्हनि खे असां अरेस्ट कंदासीं ऐं अरेस्ट थींदा इंशाल्लाह। बच्ची की वालिदा कहती है मुलजिमा हिना शाह और मुलजिम पीर फयाज शाह को पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही। इंसाफ न मिला तो इंतहाई अक़दाम पर मजबूर हो जाएंगे। पीर फयाज शाह हिना शाह नथा बचजन उहे बधा वञनि और पीर असद खे एसीअ में रहियो वियो आहे उन ते बि मार कुट न हली आहे जो पिन को नथो जे। मुंहिंजो फातिमा जो खून लुड़े न मां लुड़ण कान ॾींदसि। वाक़े को 1 माह हो गया, लेकिन पुलिस अभी तक गिरफ्तार मुलजिम असद शाह से मोबाइल पिन कोड तक न ले सकी। न्यू कराची के इलाके गोधरा में कपड़े के गोदाम में आतिशबाजी की। फायर ब्रिगेड ने 6 गाड़ियों के साथ कई घंटे में ये शोले ठंडे किए। लाखों का कपड़ा खाकिस्तर हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान राजपूत। कराची गोधरा में कपड़े के गोदाम में आग भड़क उठी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। न्यू कराची गोधरा मुस्लिम सोसाइटी में कपड़े की कतरनों के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया और आग पूरे गोदाम में फैल गई। फायर ऑफिसर आरिफ मंसूरी के मुताबिक आग की इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और 2 बाउजर ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। आग की नोयत का तो अंदाजा नहीं हुआ कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि कतरन है कपड़ों की तो हमें अंदाजा नहीं हो रहा। और जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तकरीबन 2:45 बजे आग काफी बढ़ चुकी थी, लेकिन भरपूर उसके ऊपर अटैक करने से ये हुआ कि जानी माली नुकसान कोई नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत से गोदाम की दीवारें कमजोर हो गयी, जबकि जाए वकुआ पर पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू के अमले ने भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने के नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि आग लगने के बाइस किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन शाहिद गिलानी के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज, कराची। दुल्हनों के मलबूसात के लिए बड़े शॉपिंग मॉल्स के बजाय शहरियों ने अब पेशावर जेल का रुख करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ जराइम में कैद काटने वाले कैदियों ने अपने हुनर से दुल्हनों के मलबूसात तैयार करना शुरू कर दिए। शाजिया निसार की रिपोर्ट। है दुल्हन का जोड़ा और वो भी सेंट्रल जेल पेशावर में। जेल में हर किस्म का हुनर सिखाना हो गया है कामयाब और अब न सिर्फ जेल के अंदर से बल्कि बाहर से भी आते हैं ऑर्डर्स। ये हम कमीज बना रहे हैं दुल्हन के लिए, ये ऑर्डर लिए हमारे सुपरडेंट साहब और असिस्टेंट साहब ने हमारे लिए ऑर्डर लिया है। ये सिल्म सितारे का काम है और इसमें हमने ये कपड़ा भी लगाया, ऑर्गेन्जा का कपड़ा, इससे ये फूल जो है ना इसके हमने उससे बनाया, अलग बनाए। और फिर उसके बाद ये 3D का जो फूल नजर आ रहा है आपको, ये हमने अलग बनाया, इसके ऊपर फिर लगाया ये 3D का फूल। सेंट्रल जेल में कैद सिल्मा सितारा के इन हुनरमंद कैदियों ने दुल्हन के जोड़े पर सिल्मा सितारा के डिजिटल डिजाइन बनाए हैं। जो कैदी कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हो जाती है रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, तो उनको फिर हमें चाहिए होता है कोई इस तरह सेटअप में जाके वो काम करें
نہ صرف وہ کام سیکھیں بلکہ جا کے اس کی پروڈکشن بھی کریں اور اس کی پراپر مارکیٹنگ کے لیے ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں اور مختلف NGOs سے بھی بات کرتے ہیں. قیدیوں کا کہنا ہے کہ نہ صرف ہم نے جیل میں ہنر سیکھا بلکہ ہم باقی قیدیوں کو بھی یہ ہنر سکھا رہے ہیں تاکہ جیل کے اندر اور جیل سے رہائی کے بعد بھی باعزت روزگار کر سکے. کیمرامین حیات خان کے ساتھ شازیہ نثار، ایئر نیوز پشاور. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.